S. Chand presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free. Difficult concepts made easy. Study anywhere, anytime. Hello everyone. Today in this lecture we'll be learning real sequences, bounded sequences. In real life, if you see everything, whatever we see, there is a pattern. So if there is a pattern, we can mathematically represent that pattern in terms of numbers, and if it is possible that a pattern can be represented in terms of numbers, we call that sequence. So in this lecture particularly we will be focusing on sequences, and sequences which are bounded, we'll be learning that in this lecture. Welcome to S. Chand Academy. I am Dr. Seema Thakran. So if you want to study this topic in detail, please refer to the book by S. Chand Publishing. The e-book link is given in the description box. So let's start with the topic real sequences and bounded sequences. So let's start with real sequences and bounded sequences. As I told you, if there is a pattern, and the pattern in nature, if we can represent that by in terms of numbers, that becomes a sequence. But mathematically how we write the definition of a sequence, let's understand. So what is a real sequence? I'll start with the definition. So anyhow, a sequence, why we call it real sequence? Because I'll be considering real numbers only, a sequence which is based on real numbers. I am not considering a sequence which is complex. It means the sequence based on complex numbers. So we are studying real analysis, so we'll be considering a sequence which is real only. So what is the definition? A sequence is a function f from n to r, where n is understood. In very first lecture we have understood all the notations. N is natural number set, r is your real number set. So it means this fn, every n has some value in real numbers, and it must follow a pattern. So with the example you just understand, and the notation for the sequence we write like this. This is the notation, or this is how you can write the sequence. Most commonly we use this notation for a sequence. So a sequence is a function, and the domain is natural numbers, you can see, and the values will be real. That is why we call it a real sequence. Now in a simple language, I am just taking one example, you will have better idea. So if I am considering this is how we write any sequence. So it means a natural number and square. So it means what type of sequence it is? It is a function, obviously. If you are taking 1 ke corresponding, what will be the value? 1 square. If you are taking n2, what will be the value? 2 square. Keep writing the terms, and you can see, as I told you, there is a pattern. आप देख रहे हो कि एक pattern follow कर रहे हैं numbers. So इस type के presentation को आप sequence बोलते हो. And there are other examples also you can consider. If I am writing -1 to the power n, it means there is a pattern. And what is the pattern? N is understood. N is a natural number. जब आप n को 1 ले रहे हो, क्या value आ रही है आपके पास? When you are taking n 1, so -1 to the power 1 is -1. When you are taking n2, so what will be the value? -1 square. So it will give you 1, because -1 का जब आप even power लोगे, it will give you 1. अब आप इसको, you keep repeating it, and again there is a pattern. And one more thing आप देख सकते हो, sequence is infinite. Sequence कभी भी आपको finite कभी भी नहीं होगी. It will always be, it is a function and it will always be infinite. That is another important thing about sequences. One more example if you take. So you keep writing. What you do? Just vary the n value, and n will start. N is a natural number. It means n कहाँ से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा. 1, 2, 3. We know the set. It is a standard set. अब आप n को जब vary कर रहे हो, so n 1 पे value will be 1 -1, so it will give you 0. जब आप इसको 2 लोगे, it will become 1. So 1 + 1 2, and if you keep doing it, the values will be
0 2 0 2 0 2, it keeps going. Now this very easy to write. Now if n is 1 1, then 2 1 by 2, keep writing and you get the sequences. So these are the examples for sequences. So notation you got to know, and a sequences also got to know. Now coming to the next point, a sequence is always infinite, but there is something related to the sequence which is finite, and that is range of a. Just after sequence definition, the concept of range comes, and that is range of a sequence. What does it mean? Definition: a set of all the distinct elements of sequence is called range of a sequence. अब आप देखो, अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल्स लिखे ना, द डेफिनेशन सेज कि आप जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उनके कलेक्शन को आप रेंज बोल रहे हो. सो आप यहाँ पे देखो, वी जस्ट डू दिस पार्ट हेयर ओनली. यहाँ पे देर इज नो ऑल द एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, इट मीन्स रेंज ऑफ द सेट एंड द सीक्वेंस both are same. So it means range of this, and this is how you will be writing because it will be a set. So notation for sequences, this is the notation for the sequence, but when we will be writing the range, it should be a curly bracket because it is a set. So range will be exactly the sequence because all the elements are distinct. Now coming to this series, this sequence, you can see minus 1 1, minus 1 1, minus 1 1, it keeps repeating but elements are same. So the range in this case will be minus 1 1. So now is easy to write for this sequence 0 2, the range set. So you can see range set can be finite, range set can be infinite, but the sequence will be infinite in each and every case. So range set can be finite and infinite. In this case it is all the elements are different, so it will be range set will be this. Now just after range, the concept of bounds of a set, bounds of a sequence. In the previous lectures we understood what is a set. Anyhow, sequence is also a set, but it is different kind of set. It is infinite, it is following some pattern. Then we did bounds of a set. Now in this lecture we will be learning bounds of a sequence. Exactly, almost definition is same, similar things, but it is related to the sequence now. So bounds of a sequence. If we are talking about bounds, it means first will be lower bound of a sequence. So what is the definition of for a lower bound? A sequence, this is now the notation which I will be using, because anyhow you can write Fn, that confuse you, or it anyhow both the notations are standard values. Now I will be considering this, and if you write it, this sequence is basically first element is A1, then A2, this is how you. And what does this means? This means n you are varying. First n is 1, so A1 element, first element. When you are putting n2, you will get the second element of the sequence, and this is how you write the notation. So you can expand it, but in short you can write simply sequence an. So a sequence an is said to have lower bound if all the terms of the sequence are more than or greater than equal to that element. इसका मतलब है जैसे आपने सेट में किया था ना कि वो सबसे छोटा एलिमेंट था, उससे सारे सेट के एलिमेंट्स बड़े थे, तो यहाँ पे भी सीक्वेंस जो भी है उसके सारे एलिमेंट उस एलिमेंट से बड़े होंगे
इस एलिमेंट, ये जो आपने यहाँ पे जो नोटेशन जो एलिमेंट डिफाइन किया है जिससे सारे एलिमेंट सीक्वेंस के बने, इसको आप लोअर बाउंड बोलते हो. सो दिस इज बेसिकली दी लोअर बाउंड फॉर ऑल. n कहाँ बिलोंग करेगा, अंडरस्टूड है, नेचुरल नंबर्स में. यानी हर n के लिए जो आपकी टर्म्स आ रही हैं a1 a2 वो सारी बड़ी हैं उस एलिमेंट से, वो आप पिक कर पाओगे व्हेन यू सी दी सीक्वेंस. And we have sequences, we'll do the examples also. So lower bound के लिए all the terms should be greater than that number will be the lower bound. Now coming to upper bound, just after this. So upper bound of a sequence an is said to have upper bound if, अब अपर बाउंड की बात हो रही है, इसका मतलब वो एलिमेंट सबसे बड़ा होगा. यानी जो सीक्वेंस की जो वैल्यूज हैं, एंड आई एम जस्ट राइटिंग इट एज स्मॉल, देयर आई यूज्ड फॉर लोअर बाउंड स्मॉल के, यहाँ पे कैपिटल के, जस्ट अ नोटेशन, आप डिफरेंट नोटेशन भी यूज कर सकते हो. सो यानी इस बार ये एलिमेंट सबसे बड़ा है और हर नेचुरल नंबर के लिए. आप एक एग्जाम्पल लेते हैं. ओके, नाउ कम टू बाउंडेड सीक्वेंसेस फर्स्ट. सो बाउंडेड सीक्वेंस, अच्छा दिस एलिमेंट इज योर अपर बाउंड. सो मैथमेटिकली बात करें तो ये सबसे बड़ा एलिमेंट होगा और लोअर बाउंड सबसे छोटा एलिमेंट होगा. दिस इज हाउ यू फिगर आउट कि उस सीक्वेंस में लोअर बाउंड और अपर बाउंड है या नहीं है. बाउंडेड सीक्वेंस बेसिकली क्या है? बाउंडेड सीक्वेंस वो सीक्वेंस है, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड if it has both lower bound and upper bound. चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं टू अंडरस्टैंड दिस. सो सीक्वेंस 1 by n, कैसे राइट करेंगे इसको? सीक्वेंस विल बी 1, वेरी करिए आप, n को वेरी करिए. सो 1 by n, n को आप वेरी कर रहे हो 1 2 3. आपको ये फर्स्ट एलिमेंट है सीक्वेंस का, ये सेकेंड एलिमेंट है, ये थर्ड. अब अगर आपको बोला जाए कि 100th एलिमेंट दो तो आपको पता है कि n को कितना डालना है. सो यानी n की वैल्यू से आपको पता चल जाता है कि कौन सा एलिमेंट सीक्वेंस का है. तो इट इज़ इनफाइनाइट. अब आप देखो कि इस सीक्वेंस में ऐसा कौन सा नंबर है, कौन सा एलिमेंट है जो सबसे बड़ा है. सो यू कैन ईजिली सी, ये वैल्यू है 1, ये है 0.5, 0.33 एंड दिस कीप्स गोइंग, और ये अप्रोच करेगी 0 को, बिकॉज आप फाइनली देखो n इन्फिनिटी तक जाएगा. सो 1 by infinity इज 0, यानी एग्जैक्ट 0 नहीं होगा बट इट विल अप्रोच टू 0. यू कैन क्लियरली सी कि जो 1 है, 1 सबसे बड़ा एलिमेंट है, 1 इज दी अपर बाउंड, उससे सारी वैल्यूज छोटी हैं. तो इजीली वी कैन फिगर आउट कि सबसे बड़ा एलिमेंट 1 है और सबसे छोटा एलिमेंट 0. सो इट मीन्स 0 इज दी लोअर बाउंड. अब लेते हैं n स्क्वायर. अब n स्क्वायर में द एलिमेंट्स वर लाइक, अभी राइट किया था हमने. अब आप यहां देखो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, सबसे छोटा एलिमेंट तो एनी हाउ विजिबल है, 1 इज द लोअर बाउंड. बट यू कैन सी देर इज नो लिमिट, अपर लिमिट और अपर एलिमेंट जिसको हम बोलें कि वो सबसे बड़ा एलिमेंट है, बिकॉज वी कैन नॉट फिगर आउट. इट कीप्स गोइंग 5, 10, it will go till up to infinity. There is no upper bound in this case. So the conclusion is कि एक सीक्वेंस में अपर बाउंड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. The same goes for lower bound. दोनों एग्जिस्ट करें, then that sequence will be bounded. It means ये वाली जो सीक्वेंस थी ना, इसमें दोनों आपके एग्जिस्ट कर रहे थे. बाउंडेड सीक्वेंसेस anyhow आर इम्पॉर्टेंट सीक्वेंसेस, इसीलिए हम अनबाउंडेड सीक्वेंसेस का कॉन्सेप्ट जो है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. सो बाउंडेड सीक्वेंसेस की क्या इंपॉर्टेंस है,
वो अभी हम जस्ट आफ्टर द ब्रेक विल सी कि बाउंडेड सीक्वेंसेस का कॉन्सेप्ट एंड हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट, दैट विल सी जस्ट आफ्टर द ब्रेक. सो वी गॉट टू नो what is a sequence, what is the range of a sequence, lower bound of a sequence, upper bound of a sequence, and what is a bounded sequence. So this sequence is bounded sequence. So just after the break we'll take up some examples and we'll see how it is important. हेलो एवरीवन, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न अक्सर बनी रहती हैं. सिस्टम और सराउंडिंग की ये कन्फ्यूज़न हम दूर करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं. मैं हूं डॉक्टर सचिन कुमार और एस चांद एकेडमी पर हम आएंगे और पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के ऐसे ही टॉपिक्स बिल्कुल आसान तरीके से. सो जस्ट स्टे कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम कनेक्टेड रहें और आप तक ऐसे ही टॉपिक्स लाते रहें और आप बढ़िया से पढ़ाई कर पाएँ. Hello everyone, welcome back to S Chand Academy. So we were just learning in this lecture sequences, range of a sequence, lower bound, upper bound. Now we did bounded sequence also. Why boundedness of a sequence is important? So I am just writing one definition we'll start with, and that is the convergence of a sequence. So convergence और बाउंडेडनेस क्यों इंपॉर्टेंट है एक सीक्वेंस के लिए, वाई अनबाउंडेड सीक्वेंसेज आर इग्नोर्ड और नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. So first I'll write definition of a convergent sequence, then I'll just connect the topic importance of boundedness. So convergence, or you can say convergent sequences, when we call a sequence, convergence का meaning क्या है? convergence का meaning है कि एक sequence ना कहीं किसी पॉइंट पे अप्रोच करती है. अप्रोच का मीनिंग है कि जो टर्म्स हैं सीक्वेंस की वो किसी पॉइंट के नियर हैं और उसके अराउंड जो है मतलब उसके नियर हैं उस पॉइंट के, और उस कन्वर्जेंस, उसको हम कन्वर्जेंस बोलते हैं. कैसे? अब डेफिनेशन देखो पहले. सो अ सीक्वेंस AN is said to converge to L if for epsilon greater than 0 there exists a positive integer m, and ये जो m आपने जो connected है that will depend on epsilon. Depending on epsilon there exists this such that mod of an minus l is less than epsilon for all n greater than equal to m. मैंने मैथमेटिकली डेफिनेशन लिखी है. इसका मीनिंग क्या है आप देख लो कि जो सीक्वेंस है ना उसके जो एलिमेंट्स हैं, सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स हैं और जो जिस नंबर को आप लिमिट बोल रहे हो उनका जो डिस्टेंस है ना वो बहुत छोटा होता जा रहा है. यानी वो जो सीक्वेंस है ना वो क्यों छोटा होगा? बिकॉज वो जो सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं और वो जो लिमिट है ना दे आर सो क्लोज, इसीलिए उसको लिमिट बोल रहे हैं. और एक इंटीजर आप डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन यू कैन फाइंड इफ द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. नाउ कन्वर्जेंट एंड बाउंडेड का क्या कनेक्शन है दैट यू सी नाउ. सो देयर इज अ रिजल्ट, एवरी कन्वर्जेंट sequence is bounded but not conversely. Now I am just coming to the point of the importance of boundedness. अब हम कह रहे हैं कि एक सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है, आप पहले एक सीक्वेंस लेते हैं just to understand this topic. ये मैंने सीक्वेंस ली, obviously I am considering a convergent sequence. अब इस सीक्वेंस को आप देखो, दिस इज 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन. सो कन्वर्जेंस कैसे चेक कर रहे हो आप? हाउ यू आर चेकिंग? आप ना एक बार इसके एलिमेंट्स राइट करो. यू कैन नॉट राइट लाइक ऑल द इन्फाइनाइट एलिमेंट्स बट एटलीस्ट राइट फ्यू एलिमेंट्स एंड यू कैन सी. या फिर आप एक और वे है, आप n को वेरी कराओ. n को जब आप वेरी करा रहे हो तो ये इट इज़ बेसिकली द लिमिट
दिस इज अनदर वे, अगर आप एलिमेंट्स ना राइट करो तो आप क्या करो, n की वैल्यू हमेशा, लिमिट का अगर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे तो आप n हमेशा इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है 1/n, इट इज कमिंग आउट टू बी 0, ठीक है। सो इट मीन्स ये जो सीक्वेंस है ना, पर्टिकुलरली दिस इज कन्वर्जिंग, इट इज कन्वर्जिंग टू 0। अब आई एम सेइंग कि अगर कन्वर्जेंट है तो 100% बाउंडेड होगी, ये एक अनदर, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि एक सीक्वेंस कन्वर्जेंस है, आपको पता चल गया कि ये कन्वर्जेंट है, लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, लिमिट कॉन्सेप्ट ऑल्सो वी हैव डन। सो कन्वर्जेंट, इट इज कन्वर्जिंग टू 0। और अभी आपने देखा था, अभी वी डिड जस्ट बिफोर दिस बाउंडेड सीक्वेंसेस में, इसका 1 जो है वो अपर बाउंड है और 0 लोअर बाउंड है। It means this is bounded also, so it is bounded. एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होती है बट नॉट कन्वर्सली, उस पर मैं आ रही हूँ अभी। क्यों मतलब बाउंडेडनेस को इतना इंपॉर्टेंस दिया है, क्योंकि आप ना जब एक सीक्वेंस के सम की बात करते हो तो अगर वो कन्वर्जेंट है तभी आप उसके सम को डिफाइन कर पाते हो। जैसे एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 + 2 + टिल अप टू आपको n अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों को पता है कि इसका जो सम है शॉर्ट में n + 1/2। तो क्यों डिफाइन कर पा रहे हो आप, क्योंकि वो जो सीक्वेंस है ना वो मतलब बेसिकली उसका वो कन्वर्जेंट है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि सम डिफाइन कर पाएँ। तो बाउंडेडनेस जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है, लेकिन अगर अनबाउंडेड होगी वो, तो उस पर आप कोई भी रिजल्ट या ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो सम आप डिफाइन कर पा रहे हो, वो कॉन्सेप्ट ब्रेक हो जाता है एंड देयर इज नो यूज ऑफ अनबाउंडेड सीक्वेंसेस। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंस फॉर बाउंडेड एंड यू कैन सी अ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट। अब आई एम सेइंग नॉट कन्वर्सली, एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए व्हाट आई एम सेइंग कि उल्टा रिवर्स नहीं जाएगा। सो इट मीन्स अ बाउंडेड सीक्वेंस may or may not be convergent। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल इज -1 to the power n। ये भी आपका स्टार एग्जाम्पल है। many a times it fits in like many of the examples converse prove करने के लिए। so this is the strong result। अब ये आपका जो सीक्वेंस है, दिस इज 1 -1 then -1 1 and so on। अब आप ये देखो ये बाउंडेड है ना, बिकॉज 1 इसका अपर बाउंड है, -1 इसका लोअर बाउंड है। सो 1 अपर बाउंड, -1 लोअर बाउंड, बाउंडेड है। बट आप ये देखो ये कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट क्यों नहीं है? क्योंकि एक -1 वैल्यू आ रही है, एक 1 आ रही है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। मतलब वैल्यूज जो हैं एक पर्टिकुलर नंबर के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं, मूव मतलब नियर नहीं है। सो दिस सीक्वेंस इज क्लियरली नॉट कन्वर्जेंट, बिकॉज एक कन्वर्जन के लिए सो इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट बिकॉज -1 1 दो वैल्यूज आ रही है। ऐसा नहीं होता है। जो सीक्वेंस का एवरी सीक्वेंस which is convergent, this is another strong result now related to sequences। so every sequence which is convergent must have unique limit। यानी अगर वो लिमिट आई ना तो ऐसा नहीं होगा कि दो लिमिट्स। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि -1 भी बहुत बार रिपीट हो रहा है तो -1 भी लिमिट हो सकती है, 1 भी, ऐसा नहीं है। दिस कैन नॉट बी द केस। हमेशा अगर लिमिट होगी, एग्जिस्ट करेगी, कन्वर्जेंट होगी सीक्वेंस, तो वो यूनिक होगी। तो दिस इज नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस और दिस इज बाउंडेड। यू कैन सी -1 और 1 बाउंड्स हैं, सो इट इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट। सो अगर इफ़ यू नो इन बिगिनिंग कि अगर आपको स्टार्टिंग में पता है कि वो कन्वर्जेंट है तो वो 100% बाउंडेड होगी, लेकिन रिवर्स आप नहीं कभी भी गारंटी दे पाओगे कि वो 100% कन्वर्ज करेगी। सो दिस इज हाउ बाउंडेडनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपको पहले ही पता चल जाए कि वो सीक्वेंस ना अनबाउंडेड है, यू गॉट टू नो स्टार्टिंग में ही कि वो अनबाउंडेड है, तो 100% वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो दिस इज हाउ बाउंडेडनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाउंडेडनेस चेक करना बहुत ईजी है, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड।
आप कुछ सीक्वेंसेस लेते हैं और उनकी लिमिट्स चेक करते हैं. सो एग्जाम्पल 1, फाइंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी. बेसिक से स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे आप क्या करते हो, जनरली क्या करते हैं, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, व्हाट दे डू, दे जस्ट वेरी 1, 1/2, 1/3 और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि वो किसको अप्रोच कर रहा है. अनदर वे इज कि आप इस n को इन्फिनिटी पुटअप करो एंड जस्ट सी की लिमिट क्या आ रही है. सो दिस इज गिविंग यू 1/infinity एंड 1/infinity इज 0. सो सीधा सीधा यू कैन फिगर आउट कि ये 0 को कन्वर्ज कर रही है. इट इज कन्वर्जेंट. और अभी मैंने एक रिजल्ट दिया कि अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो ये बाउंडेड भी होगी. तो ये चीज़ें आपकी फिक्स हो जाती हैं कि आप डायरेक्ट लिख पाते हो कि दिस इज बाउंडेड ऑल्सो. नाउ एग्जाम्पल 2, एंड एग्जाम्पल 2 इज फाइंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 2 टिल अप टू n अपॉन n. अब इसकी लिमिट अगर निकालनी है, थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि हाउ टू फाइंड दिस लिमिट, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, क्योंकि आपके पास ना 1, 2, 3 टिल अप टू n जो है उसका एक फॉर्मूला है. एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? दैट इज n + 1/2 and n is just as it is. n gets cancelled. So limit n tending to infinity. अब आप इस n को इस लिमिट को देखो, दिस इज स्क्वायर. सो वन स्क्वायर, just wait. So this is n square. So one n will get cancelled. One n is already there, and just break it n/2, 1/2. And now you can just break this with this also. This upon this, this upon this. So limit n tending to infinity. This is possible, and we can break it like this. n gets cancelled. यहाँ पे 1/infinity, it will approach to 0 and it just simply half. यानी अगर आपको हमेशा, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप उसकी लिमिट, जैसे अभी अब यहाँ पे why I did it with this method, the thing is अगर आप इसकी टर्म्स मेंशन करना शुरू करोगे तो जो फर्स्ट टर्म है दैट विल बी n को आप 1 तक वेरी करोगे, देन 2 तक. तो इट्स नॉट ऑलवेज कि आप उस टर्म्स को राइट करो a1, a2, a3, a4. बेटर है कि दिस कॉन्सेप्ट फॉर लिमिट, बेटर कि आप इसको भी इसी को अप्लाई करो. इट्स नॉट ऑलवेज कि आप उसकी टर्म्स लिखोगे देन यू विल चेक कि वो किसके नियर है. So you should apply some easy tricks also. So this is how you find the limit. So it was looking little difficult, but the limit is half. It means ये जो sequence है ना, जो pattern बनाया 1 + 2 + n upon n square, obviously it is following a pattern and it is approaching to. So this sequence, limit means कि वो converge कर रही है, is converging to 1/2. और मैंने आपको बोला कि ये लिमिट यूनिक होती है, ये भी आप अपने हमेशा माइंड में रखोगे, लिमिट इज यूनिक. और अगर ये कन्वर्ज कर रही है, देखो देखने में टर्म्स डिफिकल्ट थी, अब ये बाउंडेड भी होगी, 100% बाउंडेड होगी. बाउंडेडनेस सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप इसका सम डिफाइन कर पा रहे हो और आप देख भी पा रहे हो कि वी आर एबल टू जस्ट, अगर आप इसको प्लस की सम में प्लस में एक्सप्रेस करोगे, यू कैन ईजिली राइट द सम. दिस इज हाउ बाउंडेडनेस इज इम्पॉर्टेंट. उसको आप इस थ्योरम के यूज से भी converging and boundedness means it is sum can be defined. This is how we just this is how it is important. Now moving to, आप देखो convergent है, हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि सीरीज कन्वर्ज ही करे. There are sequences, so they are called divergent sequences. Sequences which converge to sequences which either converge to plus infinity or minus infinity. They are called divergent sequences. Important नहीं है ये कॉन्सेप्ट, बट एटलीस्ट यू शुड हैव, मतलब कॉन्सेप्ट है, कन्वर्जेंस है, सो डाइवर्जेंस भी होगी. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सो ये आपकी सीक्वेंस थी,
अब इसका कोई स्टॉप नहीं है, मतलब ये किसी मतलब आप देख रहे हो इट जस्ट गोइंग, कीप गोइंग एंड till infinity there is no stop. So this is diverging to plus infinity. So diverges to the same way अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट किया होता तो वो आपकी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी. सो ये सीक्वेंसेस हैं, दिस इज ऐसी भी सीक्वेंसेस एग्जिस्ट करती है क्योंकि पैटर्न है वो कैसा भी हो सकता है और वी कैन हैव आइडिया कि वो कहाँ जा रहा है, इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट, बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट. नाउ the concept of oscillate finitely and oscillate infinitely concept, the last topic of this lecture now. So oscillate finitely. अब आप सीक्वेंस को कब ऑसिलेट फाइनाइटली बोलते हो? ऑसिलेशंस आपने देखी हैं कि जैसे पेंडुलम है, इट ऑसिलेट्स एक पर्टिकुलर लिमिट पे, इट स्टॉप्स एंड इट जस्ट कीप्स गोइंग एंड उसमें वो मूव करता रहता है, तो ऑसिलेशन भी होती है. अब कौन सी सीक्वेंसेस को आप बोलते हो कि वो ऑसिलेट फाइनाइटली हैं और ऑसिलेट इनफाइनाइटली? सो कौन सी होंगी? सीक्वेंस ऑसिलेट फाइनाइटली सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस? इट शुड बी बाउंडेड, इट इज बाउंडेड. तो यानी अगर आपकी सीक्वेंस बाउंडेड है, और सेकेंड पॉइंट इज एंड इट इज नॉट कन्वर्जेंट. सो सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप देखो ये वाली जो सीक्वेंस थी आपकी -1 1 -1 1, अब इसमें जो ये बाउंडेड है वो बहुत क्लियर है कि ये लोअर बाउंड है आपका और ये अपर बाउंड है, बाउंडेड. अब आप ये देखो ना, तो ये -1 को अप्रोच कर रही थी ना 1 को, क्योंकि लिमिट यूनिक होती है, तो इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट. इसको आप बोलते हो, इस टाइप के मतलब एग्जांपल्स जो हैं, इस टाइप की जो सीक्वेंसेस हैं वो आपकी पर्टिकुलर नेम है उनका, दैट इज ऑसिलेट फाइनाइटली. और वैसे भी दिख रहा है आपको -1 1, इट जस्ट मूविंग लाइक -1 1 -1 1. सो वो भी आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हो, काइंड ऑफ पेंडुलम मतलब जो आपका. सो दिस इज ऑसिलेट फाइनाइटली एग्जाम्पल. नाउ ऑसिलेट इनफाइनाइटली. सो ऑसिलेट इनफाइनाइटली क्या है इसमें? फर्स्ट इज इट इज नॉट बाउंडेड. फर्स्ट में आपका बाउंडेड था, यहाँ पे इट इज नॉट बाउंडेड. बाउंडेड भी नहीं होगी आपकी सीक्वेंस, एंड इट इज नाइदर कन्वर्जेस को शॉर्ट में CGS आई एम राइटिंग, कन्वर्जेस नॉर डाइवर्जेस. एग्जाम्पल ले लेते हैं, एंड योर एग्जाम्पल goes like -1 then 1 then -2 2 then -3 3 then -4 4 and so on. अब आप देखो -1 -2 -3 -4 माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा, 1 2 3 4 प्लस इन्फिनिटी, यानी मतलब इसको आप बाउंडेड कर ही नहीं सकते, जस्ट कीप्स मूविंग इन बोथ द डायरेक्शन. बाउंडेड नहीं है, इट इज नॉट बाउंडेड. इवन कन्वर्जेंस का भी कोई रोल प्ले नहीं है, बिकॉज प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है. सो इट इज नाइदर कन्वर्जेस नॉर डाइवर्जेस. क्लियर केस ऑफ oscillate infinitely. So in this lecture we have learned sequences, what is a sequence, range of a sequence, and then after that we did boundedness, what are bounded sequences. After that some examples on limits, because convergence is basically a sequence converges to its limit. Then we did oscillate finitely and oscillate infinitely sequences. So if you want to study this sequence topic, basic of sequence, range, oscillate finitely, infinitely, bounded sequences, please refer to the book by S. Chand Publishing. The e-book link is given in the description box below. Don't forget to share, like and subscribe S. Chand Academy, and don't forget to press the bell icon for the future updates. Stay connected, stay tuned. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.